Okay, everyone. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Once again, I hope you people are doing well. And by considering that audio and video is clear, we're starting the session. Okay, thank you so much. ये अब्दुल हादी आपने सेंड किए थे, मुझे मिल गया। आज आपने शेयर किए थे। आज की रिकॉर्डिंग किसके पास में जाएंगी? शायद शाहरुख के पास में जाएंगी, बिकॉज शाहरुख वॉज द फर्स्ट टू जॉइन दिस मीटिंग. So all the lectures have been successfully uploaded on my YouTube channel. So you can go to the YouTube channel, you can just go through for the reference, you can just go through and refer कर सकते हैं. ठीक है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को रिवाइज करने हैं तो. Even though you can find more videos on the same topic, that is on MCC first chapter and so more second, third chapter, because last year also I have recorded the video and all those videos have been uploaded on the YouTube channel. So you can find it as academic year 2020-21, because your academic year is 21-22. Okay, so you can find more videos in 2021 also. Okay, that's one thing. Okay, so first of all, we'll be revising the thing what we have done yesterday, and then we'll be starting the new topic. Okay, I think we have one more lecture tomorrow. Okay, yes, because third year का नहीं होता है कल फ्राइडे के दिन. आज कल आप लोग का होता है फ्राइडे के दिन. Okay, so this is my screen. I've already presented. I hope this is visible. Someone please let me know. अनम्यूट करके बताओ, बिकॉज मैं अभी वो पेज पर नहीं हूँ. Yes, sir. Yeah, visible. Okay, okay, okay. Thank you. Okay, so we have already started this chapter, that is GSM fundamentals. Okay, and this is the second chapter, and it is carrying around, you know, uh, more marks, as compared to the previous one, the first chapter. So it is carrying more marks, around 20 marks. It is carrying, yeah, we can say more than 20 marks. It is carrying. Okay, so we have to focus, and we need to concentrate on the first module, what first and second module more. Okay, because the questions will be asked from these two modules. Okay, like JSM architecture. Let me tell you what are the different questions which are expected. That is GSM architecture, then its radio interfaces. If the GSM architecture is asked, then you have to write down about the radio interfaces also. Okay, those interfaces are very simple. You can just need to remember those interfaces and what are the function of those interfaces. You need to remember, then you can easily write it down. Protocols also come with this architecture, but if it is asked for 10 marks, then you can just mention what are the different protocols. बस उतना mention कर दी तो भी काफ़ी है. Then localization and calling is asked as a separate question for 10 marks. What is localization and what is calling? तो उसके बारे में. And then handover is a separate question again for 5 marks or maybe for 10 marks. It has 4 different types of handover, so we'll be learning all those 4 types. Then next, security, again separate question for 10 marks, A3, A5 and A8 algorithm. Okay, तो ये इसमें से आप अराउंड यू कैन एक्सपेक्ट कम से कम 10 मार्क के 2 क्वेश्चन तो आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी जीएसएम में से सर. और फिर एक आध शॉर्ट नोट्स में अगर कभी जीपीआरएस के बारे में आ गया, सो दैट इज द एड ऑन. ओके, मतलब इन शॉर्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, सो नीड टू फोकस मोर ऑन दिस फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट. ओके, बाकी UTRN, it has a complete architecture. थोड़ा सा architecture है that you need to remember. मैं again I'm asking you that कि you need to remember lot of diagrams. Okay, बहुत सारे architecture, बहुत सारे diagrams, we can say block diagrams, you need to remember. You need to practice it more and more so that you can draw it any time anywhere. आपको ये चीज़ें याद रहें. Okay, so the very first diagram will be coming with this architecture of GSM. Okay, आगे आएगा. So yesterday we have started with the introduction part, that how this particular GSM is important and how it is spread out, and it has been implemented in so many countries. We have already seen those things. Uh, Regarding this GSM, we have seen the 4 variants are there. Okay, those 4 variants are, I think यहाँ पर हम लोग ने mention किया था, GSM 900, GSM 1800, 1900 and 400. Okay, all are having different uplink and downlink frequencies. Okay, so we don't need to remember. अगर if they are asking for the about GSM, their introduction part थोड़ा सा, अगर वो तो कोई पूछता नहीं है, you have to write it down from your own. Okay,
तो अगर कभी जीएसएम के बारे में पूछा तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट हैव टू स्टार्ट विद डायरेक्टली विद द आर्किटेक्चर, ठीक है। आपको डायरेक्टली आर्किटेक्चर से स्टार्ट नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी राइटिंग अबाउट द जीएसएम ना, व्हाट इज जीएसएम। तो बेसिकली विल बी राइटिंग जीएसएम इज नथिंग बट अ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड इट हैज 4 वेरिएंट एंड इट इज स्प्रेड आउट मोर, यू नो, एंड फ्रॉम दिस जीएसएम द थिंग्स कैन बी हैंडल इन दिस वे, ओके। एंड देन ये तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन द प्राइमरी गोल ऑफ द जीएसएम वाज टू प्रोवाइड अ मोबाइल फ़ोन सिस्टम दैट अलाउज यूज़र टू रोम थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड द सर्विसेज। मतलब कहीं भी घूमो बट सर्विस प्रोवाइड करो, जीएसएम हमको प्रोवाइड करेगा। एंड देन उसके बाद में इसके वेरिएंट्स यू कैन राइट डाउन ऑफ द वेर बट नॉट इन डेप्थ, ओके। थोड़ा आपको उसके बारे में लिखना है, so that the examiner will also come to know that he or she the person knows everything about the GSM, okay। फीचर्स वी हैव गॉन थ्रू। फीचर्स शॉर्ट में खाली बस आप एनालिस कर सकते हो। यूज़ ऑफ सिम कार्ड, देन प्राइवेसी ऑफ डेटा, देन स्पेक्ट्रम को इम्प्रूव किया गया है, देन इंटरनेशनल एंड नेशनल रोमिंग, then voice quality and compatible with ISDN and PSTN. So it means that के each and everything ISDN PSTN आ गया, इसका मतलब ISDN में आपका वॉइस कॉलिंग डेटा वगैरह सब कुछ आ गया और PSTN में आपका लैंडलाइन कॉलिंग भी है। मतलब आप कहीं पर भी किसको भी कॉल कर सकते हैं, चाहे वो लैंडलाइन हो चाहे मोबाइल हो, चाहे आप इंटरनेट सर्विस यूज़ करना हो, चाहे मैसेज सर्विस हो, इमरजेंसी सर्विस हो, वट एवर एनी काइंड ऑफ सर्विस यू कैन यूज़ विद द हेल्प ऑफ ISDN एंड PSTN। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मैं कहीं ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ? बिकॉज़ मुझे ऐसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू पीपल दैट एम आई टू फास्ट? No, sir. Fine, sir. फाइन ना, ठीक है। बिकॉज द थिंग्स आर सिंपल, वी डोंट नीड टू स्टे मोर ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, सो आई एम गोइंग little bit fast because these things have already been done, but still I'm just revising it, okay, for your purpose. Then mobile services, yesterday we have seen we have the different types of services. Our GSM is providing three different types of services, okay, three different categories of services: data services, ओके। एक्चुअली मैंने आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको ब्रैकेट्स में लिखा है, बट द मेन सर्विसेज आर बियरर सर्विसेज, टेली सर्विसेज एंड सप्लीमेंट्री सर्विसेज। So the bearer services can also be termed as a data services, okay, which will be focusing more about the data, okay. Then tele services will be focusing on the calling function, that is on the voice services, and the third one is supplementary services. We will be learning this third one, supplementary services, today, okay. uh we done about the bearer services, data services, then tele services or voice services, then some of the emergency numbers, the mandatory one, okay, the SMS, EMS, that is enhanced message service. One of the viva question, what is EMS, okay, या फिर what is the enhanced version of SMS, okay, how many characters it support, okay, so हम लोग को पता होना चाहिए। SMS 160 character, EMS 760 characters. Talk about the MMS, then MMS is capable of transmission of larger pictures like GIF, JPG, okay, short video clips can also be sent. आप लोगों ने भी काफ़ी बार सेंड किया होगा MMS, ठीक है। मैंने तो कभी आज तक सेंड किया नहीं हूँ, कभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक है। बिकॉज जब था यूज़ करने का टाइम तो उस टाइम पे मैं बोला कौन इतना पैसा खर्चा करेगा, और जब आया तो वी आर हैविंग लॉट ऑफ एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, सो दैट वी कैन सेंड आवर मल्टीमीडिया ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स ऑन, ओके। तो एमएमएस को यूज़ तो नहीं किया, लेकिन लोग यूज़ करते थे, पीपल्स आर हैविंग इन अ गुड अमाउंट, सो लोग अच्छे से अपने पिक्चर्स वगैरह या फिर उसको उन लोग एमएमएस के थ्रू सेंड करते थे, ओके। Coming to the main topic, the topic of the day, that is supplementary services, okay. Those are chiller services, okay. Some I can say कि basic services है जो कि हम लोग को provide की जाती है। एक सेकंड, just a second। ओके, घर में रहने पर बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, कॉलेज में रहेंगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, कैबिन में रहता है।
Okay, so coming to the third category of services which is being provided by the GSM, that is Global System for Mobile Communication. Okay, so in addition to the tele, that is voice, and the bearer, that is data services, GSM providers can offer supplementary services. You know, these services are also called as additional services. Okay, additional services, and these additional services are very important for the user also and for the provider also, because अगर ये नहीं होंगी तो फिर इतना सारा मैनेज नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं, चलो हम लोग देखते हैं। सिमिलर टू दी ISDN, दैट इज इंटीग्रेटेड नेटवर्क, आपका मतलब जिसके अंदर पूरे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ISDN, these services offers various enhancement for the standard telephony service and may vary from the provider to provider। आपने देखा होगा कि प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर कहीं ने पहले होता था, अब तो इतना नहीं होता कि किसी ने 30 पैसा कॉलिंग रखा है, किसी ने 25 पैसे कॉलिंग रखा है, किसी ने 10 पैसे कॉलिंग रखा है। सो ऐसे पहले चलता था। अभी भी आपने देखा होगा कि एक जो स्कीम है, जो हमारे जो रिचार्जेस है 2000 एक किसी का अगर एयरटेल में है तो वो कुछ 598 रुपीज़ का फॉर 84 डेज, एंड डेली 1 GB एंड 100 SMS, ऐसा कुछ स्कीम रहती। और वही चीज़ आप जियो में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। सो द टैरिफ्स एंड द स्कीम विल बी चेंज प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर, और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, उनकी सर्विस के हिसाब से तो रेट वेरी हो सकता है, एज यू कैन सी इन द केस ऑफ एयरटेल एंड जियो। ओके, so these typical services are call conferencing. What's the one which is very common right now? From last 2 years we are using this call conferencing, because all the peoples are apart from each other and they are living at their location, they are not meeting, okay, और मतलब मिल नहीं पा रहे हैं, तो what they are doing call conferencing। तो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग अभी तो बहुत चल रही है, ये तो अभी का हमारा केस है, बट दिस इज द वन सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय द GSM, ओके, अंडर द सप्लीमेंट्री सेक्शन। कॉल कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ करते हैं, सो ये एक अच्छी बात है। कॉल वेटिंग, इफ समवन इज कॉलिंग देन, और हम लोग ऑलरेडी कॉल पर है तो आपको कॉल वेटिंग करके बताएगा। अदरवाइज क्या 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 होना चाहिए था, कॉल लगना ही नहीं चाहिए, बिकॉज समवन इज टॉकिंग, ओके। तो आपको अभी लिख के भी आता है कि यू हैव अ कॉल, ओके, यू कैन पिक अप दिस कॉल बाय पुटिंग द करंट कॉल ऑन होल्ड, समथिंग लाइक दैट, आपको ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। कॉल बारिंग, कॉल बार करना मतलब कॉल, किसी का कॉल को हम लोग वो कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इज इट द सेम वर्ड वी कैन यूज फॉर द कॉल बारिंग, or you have any other option, or you have any other the word for it? Anyone from your side, what do you understand by call barring? किसी का कॉल बार करना, किसी का कॉल को बार करना मतलब किसी किसी की सर्विस को स्टॉप करना, जहाँ तक मुझे पता है तो यही है। एनीवन, please come forward and speak out if they cannot see your messages. कोई भी नहीं है बोल रहा आप लोग। हेलो एवरीवन, आप लोग बोल सकते हैं। Yes, sir, but don't know the meaning of call bearing. ओके ओके ओके, सो कॉल बारिंग, जहाँ तक मुझे पता है, किसी की सर्विस, किसी के कॉल को स्टॉप करना, जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं ना, अरे अच्छा अच्छा उसके लिए वर्ड है, मैं भी भूल रहा हूँ, ब्लॉक करना, ब्लॉक करना, किसी के कॉल को ब्लॉक करना। यस, कोई तो कुछ बोल रहा था अभी, शायद मैं बीच में बोल रही हूँ। Blocking, sir, वो same बोला उसने भी। अच्छा अच्छा, सेम बोला, ओके। सो कॉल बैरिंग इज नथिंग बट योर कॉल ब्लॉकिंग, किसी का कॉल को ब्लॉक करना। मोस्ट ऑफ द पीपल डू समथिंग लाइक दैट, कि वो किसी को कुछ भी ऐसे मैसेजेस डाल देते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो बेचारा सामने वाले के अगर कुछ मैसेज रिप्लाईज आते हैं तो उसको देख ही नहीं पाता। सो दैट नथिंग बट अ कॉल, किसी के कॉल को स्टॉप करना, सर्विस को स्टॉप करना, बैक करना, वगैरह वगैरह, ठीक है। So this is one of the service which is there in our system, in our GSM, so that we can make use of this service, okay। कि किसी को भी जो बोलना है बोल दो और उसका कॉल को, उसके नंबर को ब्लॉक कर दो। विल नॉट रिसीव एनी कॉल इन एनी मैसेज फ्रॉम द पर्सन टू हुम यू हैव सेंड द मैसेज। कॉल फॉरवर्डिंग, ओके, कॉल फॉरवर्डिंग, सो बेसिकली कॉल फॉरवर्डिंग में आपको तो पता है, आप लोगों ने भी यूज़ किया है, हमने भी यूज़ किया है, ओके। इफ यू आर हैविंग टू नंबर्स, ओके, आपने एक का कॉल दूसरे पे फॉरवर्ड करते, एक को चार्जिंग पे लगा दिया और दूसरा वाला फोन लेके आप बाहर चले गए। सो ऑल द कॉल्स विल बी कमिंग ऑन दैट फोन विच इज ऑन चार्जिंग
which is on charging, so that call will be forwarded to that other number, okay, to whom you have made the setting. उसमें सेटिंग होती है, आप लोग कर सकते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग भी होता है, ठीक है। मैंने 2-3 बार किया था, बट वो पहले कॉल यहाँ पर आएगा, यहाँ से होने के बाद में फिर आपको उसका कॉल यहाँ पर आता है, तो यूज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एडिशनल सर्विस वी कैन हैव, दैट इज द सप्लीमेंट्री सर्विस वी कैन हैव इन जीएसएम, ठीक है। नंबर आइडेंटिफिकेशन विद अब तो देखो नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस है, वी कैन मेक यूज ऑफ दोज एप्लीकेशन एंड वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, एंड अगर स्पैम है तो स्पैम शो करेगा। इट हैज बीन फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाय द रेडमी, मैंने कि आपका जो एमआई का जो ब्रांड है उसने आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट किया। आई थिंक पहले भी किसी ने स्टार्ट किया होगा, बट आई एम लुकिंग फ्रॉम द एमआई ओनली। उसके बाद फिर सैमसंग ने भी इनबिल्ड स्टार्ट किया है। यू हैव वन मोर एप्लीकेशन दैट इज कौन सा है, अच्छा ना, ब्लू कलर का एप्लीकेशन है वो, आई डोंट नो द नेम। Truecaller, very good. So that from Truecaller you will come to know, you can identify the number, ये आप कर सकते हैं, okay. So और इनबिल्ड भी होता है आपके फ़ोन में, इफ देयर इज अ कॉल फ्रॉम फ्रॉम सेल्स, तो लिख के आता है कि so many people और 29 और something like 100 and 200 people have reported this call as a spam, okay, या this call as a sales, okay. So you will come to know, automatically will come to know that you have to pick up this call or not. So number identification, additional service, okay. Then last में closed user group, तो ऐसा पहले होता था, डोकोमो वगैरह के अंदर करते थे, अब शायद ये होता है कि नहीं, आई डोंट नो। ये सर्विस अभी भी सर्विस प्रोवाइडर दे रहे हैं या नहीं, बट पहले ऐसा होता था, पहले ग्रुप कॉलिंग होती थी। आप कॉलेज में, हमारे जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उस टाइम पे डोकोमो वाले और दूसरी सर्विस हच वाले ऐसे आते थे। अगर आप लोग ये अगर कभी सिम कार्ड हमारा लेंगे, तो अगर आप 8 लोग 10 लोग कॉलेज वाले अगर लेते हैं, तो कॉलेज के जितने लोग लेंगे, तो उनमें जितने लोग ने ये हमारा सिम कार्ड लिया है, तो उनको आपस में कॉलिंग फ्री रहेंगी, आपस में लोग बात कर सकते हैं, आपस में चैट कर सकते हैं, मैसेजेस। पहले मैसेज सेंड करने का ज़रा ट्रेंड ज़्यादा था, पहले कॉलिंग कम होती थी, कॉलिंग में पैसे ज़्यादा लगते थे और मैसेज में कम पैसे लगते थे। सो कंपैरेटिवली योर मैसेजिंग वाज मोर इन थोड़ा सा ट्रेंडिंग में रहता था। तो पहले ऐसे ग्रुप हुआ करते थे, यूजर ग्रुप के अंदर सारे जो कम्युनिकेशन है वो हुआ करता था। सो सर्विस प्रोवाइडर यूज्ड टू प्रोवाइड मोर बेनिफिट्स फॉर द यूजर ग्रुप, ओके। तो जो क्लोज पीपल है, जैसा कि फॉर एग्जांपल फैमिली के अंदर 5 कार्ड ले लिया, एक डैडी के पास, मम्मी के पास में, एक भाई के पास में और एक बहन के पास में, आपस में लोग कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एक कार्ड लेके गाँव में भेज दिया हम लोगों ने और फिर कॉलिंग चल रही, क्या क्या बनाए थे, क्या खाए थे, सो ऑल दोज कम्युनिकेशन विल गो ऑन, ठीक है। So like this, these are the different services which is already been provided by the GSM, and these services comes under the supplementary services, okay, also called as additional services, okay. So this is the third category of service we were talking about. I think this is clear. I hope that up to this point everything is clear now, and we can move to the next topic, and which is the very important topic, that is system architecture of GSM, Global System for Mobile Communication. Please, all of you can respond me whether people are understanding or not, or we can move Yes, sir. ahead. Okay. Thank you so much. Now let us start with the main topic or the important topic, that is GSM architecture. Okay. Now I want all of you to concentrate on this particular topic more. Okay, as compared to the previous one. So first of all, let me show you the architecture of this particular GSM, that is Global System for Mobile Communication. Very simple diagram, very simple diagram. इतना repeat होगा ये diagram हमारे पास में, इतना repeat होगा कि आपको ये diagram by heart हो जाएगा, ठीक है। No, last year and to the last year, people used to come on board, मतलब जब कॉलेज चलती थी तो people used to come, students used to come on the board and they draw the diagram without seeing anywhere else. तो इतना बाय हार्ट हो जाता है डायग्राम में, इतना सिंपल है। तो ये डायग्राम पहले मैं आपको बताया, उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। So basically our GSM architecture comes with the hierarchical, or we can say complex system architecture, which comprises so many entities, which comprises so many interfaces and so many wordings, or we can say acronyms are there, okay. So a GSM system consists of 3 subsystems, okay, and these 3 subsystems are mentioned over here, okay.
तो आपका जो आर्किटेक्चर है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब सिस्टम. द होल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 सब सिस्टम. द फर्स्ट सब सिस्टम इज रेडियो सब सिस्टम, RSS. सेकेंड इज नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं NSS. एंड द थर्ड इज ऑपरेशन सब सिस्टम, ओके. ठीक है, तो ये आपके तीन सब सिस्टम में डिवाइड किया है. तो मैंने नीचे इसके लिए लिख दिया हूँ GSM इज इक्वल टू RSS प्लस NSS प्लस OSS, RNO. तो RNO आपको याद में रखना है, SS तो सबके साथ में है, ठीक है. सब सिस्टम एंड सब सिस्टम. तो रेडियो, नेटवर्क एंड ऑपरेशन, ये 3 वर्ड आपको याद में रखना है, सो दैट यू कैन इजीली राइट इट डाउन अबाउट इट, ओके. So coming to the architecture now, okay, just have a look first. On the left hand side you can see there is a mobile equipment, there is a mobile user which is carrying a mobile phone, okay. You can see a छोटा सा डब्बा मोबाइल, वो आज से कुछ साल पहले की बुक है, इसके लिए आपको वो छोटा सा डब्बा मोबाइल दिखेगा. बट राइट नाउ वी आर हैविंग स्मार्ट टच फोन, स्मार्टफोन्स which are touch screen and having lot of functionalities with them, okay. So this is our mobile equipment, जिसको हम लोग ME बोलेंगे. आई कैन कॉल इट एज अ यूजर ऑल्सो, ठीक है. मोबाइल यूजर भी मैं उसको बोल सकता हूँ, ठीक है. बिकॉज दैट पर्टिकुलर मोबाइल इक्विपमेंट, दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट विल बी कैरिड आउट बाय समवन, सम पर्सन ओनली, ठीक है. कोई ना कोई बंदा होगा जो उसको कैरी करेगा, ठीक है. तो वो आपका यूजर भी मैं उसको बोल सकता हूँ. तो सिंपली we may call that particular entity as a mobile equipment और मोबाइल यूजर, और सिर्फ यूजर, इतना भी हम लोग बुला सकते हैं. अच्छा, देयर इज अ सेम ऑलरेडी, ठीक है. सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जिसके बारे में हम लोग ने बात किया. दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द GSM दैट आर GSM इज कैरिंग, कि हमारे फोन के अंदर, हमारे इक्विपमेंट के अंदर एक छोटी सी चिप होती है, एंड दैट चिप इज कॉल्ड एज SIM, दैट इज SIM, ओके. Subscriber identity module, okay. And cause of that particular SIM, we are able to communicate with other person, okay. We are able to use the services provided by that particular network service provider, okay. We are able to send the messages, we are able to use the data services, then calling services, every services will be able to use, okay, with the help of that particular SIM, छोटी सी chip, okay. So the left one part is clear, okay. उसके बाद में आते हैं BTS, ओके. नाउ आई नीड सम डायग्रामेटिक पार्ट, थोड़ा सा मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो कहाँ से बताऊँ मैं, थोड़ा सा 1 मिनट मैं अपना वो लेकर आता हूँ, जनरल शोभित है. चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं. सो वी हैव नाउ द सेकंड लेयर इज एज अ BTS, ओके. दैट BTS इज नथिंग बट बेस ट्रांसीवर स्टेशन, दैट इज बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ओके. अभी के लिए खाली इतना समझो, फिर आपको मैं पूरा एक अच्छा सा बड़ा डायग्राम, पूरे खारगर का, पूरे पनवेल का इतना बड़ा डायग्राम बना के बताऊंगा. देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके. सो वी हैव नेक्स्ट मॉड्यूल एज BTS, दैट इज बेस ट्रांसीवर स्टेशन. मतलब कि योर मोबाइल इक्विपमेंट विल बी कनेक्टेड टू सम ऑफ द BTS, ओके. तो if it is presented in this particular area, मतलब यहाँ कहीं आसपास में है, so the mobile equipment or the user will be connected to this particular BTS, okay. Now few of the BTS are being handled by one of the BSC, that is base station controller, ठीक है. मतलब ये 3 BTS को, इन 3 मतलब इतने बड़े एरिया को संभालने के लिए आपका एक 1 BSC है, दैट इज बेस स्टेशन कंट्रोलर, ओके. तो इसी तरीके से यहाँ पर 2. अच्छा, यहाँ पर हमारे बहुत सारे BTS, डिपेंडिंग ऑन द एरिया वी मे हैव नंबर ऑफ BTS, ओके. एंड डिपेंडिंग ऑन एरिया वी मे हैव नंबर ऑफ BSCs, ओके. तो यहाँ पर हम लोगों ने खाली बस 5 बताया है, so it doesn't mean that the area will be divided into 5 different regions only, okay. It doesn't mean that, okay. The things are shown for just for the 5 BTS, okay. तो यहाँ खाली 5 आपको खाली बताने के लिए बताया है, मतलब ड्रॉ किए हैं. अदरवाइज we may have number of BTS depending on the area, okay, depending on your city. Okay, so here just for example we have allotted 3 BTS to the 1 BSC, okay. तो 3 BTS का कंट्रोल हम लोगों ने दे दिया BSC. अच्छा, if you remember, then we have gone through one more word over here. GSM comes with, I need concentration of each and every one person, okay. All of you please concentrate. GSM comes with hierarchical complex system architecture, ठीक है. तो it's a hierarchical based system, okay. So you can just say, यहाँ पर आपका मोबाइल इक्विपमेंट, उसके ऊपर आपके BTS, then BTS is connected to the BSC, then BSC is connected to the MSC. So we have one more module, that is MSC. MSC मतलब मोबाइल स्विचिंग सेंटर, okay.
Your mobile switching center is having some sort of a databases. Your mobile switching center is carrying some databases like HLR, VLR, EIR, AUC. HLR home location register, VLR visitor location register. अच्छा, नाम सुनते से ही आप फौरन थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाट कैन बी द HLR एंड व्हाट कैन बी द VLR. ओके, बट थोड़ा हम लोग इसके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे बिकॉज ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी बारे में. Then we have two more databases. One is EIR, that is Equipment Identity Register, and we have AUC, that is Authentication Center. Okay, so we have these four databases with us, that is with the MSC, in order to verify the mobile user who are connected with the BTS, then BSC, then MSC. Okay, I hope you people are understanding. Okay, so there's a mobile equipment. Mobile users are roaming in the areas. मैं आपको डायग्राम्स का अलग से बताऊंगा, आप टेंशन मत लो. अगर अभी ये तो आपको समझ गया होगा, आई होप सो. अगर नहीं भी समझा सो डोंट वरी, वी कैन हैव मोर थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा और हम लोग डेप्थ में लेके जाएंगे. ठीक है, सो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे दैट योर मोबाइल इक्विपमेंट इज कनेक्टेड टू द BTS, to the immediate जिस एरिया में, because each and every area will be having its own BTS. Okay, and then few BTS will be connected to one BSC. Okay, and then few BSC will be connected to the one MSC. Okay, so एक फॉर एग्जांपल एक शहर के अंदर, एक सिटी के अंदर हमारे पास में एक MSC रहेगा और जितने एरियाज है उनके हिसाब से BSC भी रहेंगे और BTS भी रहेंगे. ठीक है, so they are connected in a hierarchical format also, and this is a very complex structure, so that's why we have written over here GSM comes with hierarchical complex system architecture comprising many entities. You can find many entities are there. यहाँ पर देखो हमारे पास बहुत सारी एंटिटीज है लाइक BTS, BSC, HLR, VLR, MSC, EIR, AUC, OMC. सो बहुत सारी चीज़. अच्छा, एक और है, मैंने नाम नहीं लिया उसका, that is OMC, Operation Maintenance Center. Okay, so these 5 modules are always connected with the MSC so that MSC can do its required job, its required task. Okay, तो MSC को ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, तो इसके बारे में हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, वन मोर थिंग, your MSC is also connected with the public network. Okay, see I have written here public network. It means that it is connected to the PSTN, connected to the ISDN, connected to the data network. ठीक है, मतलब सब कुछ आ गया. ISDN के अंदर वॉइस इमरजेंसी वगैरह सब कुछ आ गया. डेटा नेटवर्क में भी आपका जो भी आपको डेटा सर्विसेज है वो यहाँ से प्रोवाइड हो गई. मतलब एक छोटे छोटे मॉड्यूल करके आपको बता दिया जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ओके, सो दैट जितना भी हमारा है डेटा, मतलब जितने भी हमारे पब्लिक नेटवर्क है, दोज पब्लिक नेटवर्क्स आर आल्सो कनेक्टेड विथ योर MSC, सो दैट इफ देयर इज सम पर्सन. चलो अब यहाँ से थोड़ा अंदाजा लगाते हैं हम लोग. वी आर ऑन द मूव. ठीक है, देखो हमारी कार हम लोग की घूम रही है, हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे. तो कभी ये BTS में, कभी फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इन खारगर, सो राइट नाउ कनेक्टेड टू द खारगर रीजन. अच्छा, खारगर भी काफ़ी बड़ा है, सो खारगर पूरा खारगर को एक BTS कवर कर लेगा? नो, ऐसा तो नहीं है. ठीक है, सो खारगर का एक रीजन 2-3 सेक्टर के लिए एक BTS रहेगा. ठीक है, यू माइट हैव सीन वन एंटीनाज, यू नो, समथिंग लाइक ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा और हर किसी ने देखा है ये. तो वो जो एंटीनाज होते हैं, दो एंटीनाज जो है ना, बहुत बड़े बड़े एंटीनाज है जिनके बारे में हमने सुन रखा है कि वो जो बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं तो बिल्डिंग वालों को बहुत पैसा मिलता है और 25,000 पर मंथ उनको पैसा मिलता है. अरे सुनेंगे नहीं सब बातें इसके बारे में? Yes, sir. तो वो जो चीज़ें हैं वो तो सही भी है, बिकॉज कंपनीज अर्निंग मोर देन दैट. जितना वो इन्वेस्ट कर रही है उससे ज़्यादा कमा रही है, बट इट हैज़ डिसएडवांटेजेस टू. उसके बारे में हम लोग ने ये भी सुना है कि जो उसकी वजह से जो मतलब जो हार्म है, जो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है, सो वो बिल्डिंग वाले, आसपास वाले, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ द स्किन इश्यूज. हाँ, रेडिएशन, तो रेडिएशन की वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं इन टर्म्स ऑफ द स्किन्स एंड द हीटिंग. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो वो तो आपने सुना है. तो वो जो होता है एंटीना ना, दैट एंटीना इज नथिंग बट योर BTS. ओके, दैट इज बेस ट्रांसीवर स्टेशन. सो वो BTS होते हैं. तो BTS के छोटे छोटे रीजन के लिए होते हैं. आपने देखा होगा, कभी ये बिल्डिंग के टॉप पर है, कभी वो बिल्डिंग के टॉप पर है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि सेम कंपनी के हो.
हो सकता है कि अभी इसने यहाँ पे लगाया फॉर एग्जांपल एक रीजन 2-3 सेक्टर्स कवर किए, फिर बाद में 2-3 सेक्टर्स के लिए दूसरा बीटीएस किसी दूसरी बिल्डिंग को ढूंढेगी। सो ऐसा उन लोग को एक बेस मिल जाता है, कोई अच्छी अगर कभी हाइट वाली बिल्डिंग है, टावर है, तो उनको अच्छा बेस मिल जाता है विदाउट एनी। बट अदरवाइज आप सोचो कि इफ द कंपनी हैज टू इन्वेस्ट फॉर दैट इंस्टॉलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बीटीएस, देन हाउ मच दे हैव टू इन्वेस्ट। उनको पहले अपना खुद का एक टावर खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए आयरन लगेगा, और उसके लिए उन लोग को रॉड्स लगेंगी, बड़े बड़े चैनल्स लगेंगे, एंड दोज चैनल्स आर वेरी कॉस्टली एंड द इंस्टॉलेशन एंड अदर थिंग्स आर वेरी वेरी कॉस्टली। ठीक है, भले उनका खुद का टावर हो जाएगा वो, लेकिन उसमें उनका इन्वेस्टमेंट बहुत, ठीक है। तो अभी कंपनी वाले दिमाग लगा रहे हैं कि चलो ठीक है, थोड़ी सी लालच देंगे, बिल्डिंग वालों को थोड़ी सी लालच दो कि चलो हम आपको हमारा हमारा एंटीना ऊपर रहेगा। आप तो टेरेस तो वैसे भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, आपका वाटर टैंक है ना, आपका जो भी है उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमको छोटी सी जगह चाहिए, वहाँ पर उन लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उनका इतना सब खर्चा बच गया। चलो 1 लाख रुपए आपको देंगे, इंस्टॉलेशन हम लोग कर लेंगे फर्स्ट टाइम में 1 लाख रुपीज, एंड एवरी मंथ विल गिव 25,000 और 30 और 40,000 वट एवर जितना भी उसके हिसाब से है। सो दैट अमाउंट हम लोग आपको हर महीने देंगे। तो सोसाइटी वाले एकदम लालच में आ जाते हैं एंड दे अलाउ देम, ठीक है। तो उससे फिर सबका नुकसान हो जाता है। तो दैट इज द वी कैन से डिस्कशन अपार्ट। तो वो आपका बीटीएस है। सो बीटीएस कवर स्मॉल रीजन, ओके। ऐसे ही बहुत सारे बीटीएस अलग अलग एरियाज में होते हैं, एंड ऑल दोज बीटीएस कनेक्ट टू वन बीएससी, जो कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि 3-4 सेक्टर का एक बीएससी रहे, ओके। एंड पूरे खारघर के लिए हो सकता है कि एक एमएससी भी रहे, ठीक है। ऐसे हमारे पास में मल्टीपल एमएससी हर एक बड़े रीजन के लिए हो सकते हैं, ओके। जैसे जैसे हम लोग इसमें जाएंगे तो आप लोग को, जैसे अभी फिलहाल तो इतना समझ में आया कि वी हैव मोबाइल इक्विपमेंट, वी हैव इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद द बीटीएस दैट इज बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशंस, एंड दोज बीटीएस नंबर ऑफ बीटीएस आर कनेक्टेड टू द वन बीएससी, and the number of BSCs are connected to one MSC, and MSC is taking help of HLR, VLR, EIR, AUC, OMC। 5 डेटाबेस की हेल्प लेता है। HLR होम लोकेशन रजिस्टर, जितने घर के लोग, घर के यूजर्स है, उनका एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, होता है ना हमारी सोसाइटी में रजिस्टर होता है, एंड द वॉचमैन यूज टू मेंटेन इट, ओके। द पर्सन इज कमिंग इनसाइड, द पर्सन इज गोइंग आउटसाइड, सो ही मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग, ओके। when he comes in, okay, उसका मोबाइल नंबर एवरी डिटेल ही टेक्स, ओके। तो वो वैसा जो रजिस्टर होता है सोसाइटी में, इन द सेम वे वी आर हैविंग HLR एंड VLR रजिस्टर, ओके। तो जो घर वाले हैं उनका भी मेंटेनेंस, यहाँ थोड़ा सा सीन अलग है बट है उस टाइप का। तो HLR होम लोकेशन रजिस्टर एंड VLR विजिटर लोकेशन रजिस्टर, अगर कोई बाहर से आता है तो उसको हम लोग तो VLR में एंट्री करते हैं, सो दैट आर MSC विल कम टू नो कि हाँ भाई चलो ये बंदा बाहर से आया, इसके लिए एंट्री यहाँ पर होगी, ठीक है। देन यार इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये जो बंदा है एमई जो मोबाइल लेके घूम रहा है, तो उसकी उसकी उन लोग आइडेंटिटी चेक करते हैं कि वेदर द पर्सन इज ओके और नॉट, ओके। ऐसा तो नहीं किसी और का मोबाइल लेके घूम रहा है, मैंने किसी और का मोबाइल चोरी कर लिया और वो लेके मैं एक सिम कार्ड डाल के यूज कर रहा हूँ, तो मेरा EIR उसको कैच करना चाहिए, ओके। देन AUC ऑथेंटिकेशन सेंटर, दिस इज फॉर द ऑथेंटिसिटी पर्पस, एंड OMC ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर। तो ऐसी मिसलेनियस कामों के लिए, मिसलेनियस वर्क के लिए we can make use of the OMCs, okay। So like these 5 modules are connected to the MC in order to support MSC, okay। MSC को सपोर्ट करने के लिए, MSC से काम करवाने के लिए 5 मॉड्यूल से कनेक्टेड है। and your MSC is again connected with the public networks like PSTN, public switching telephone network, कनेक्ट हो गया तो आप मतलब PSTN से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब आप के किसी भी लैंडलाइन को कॉल कर सकते हैं। ISDN को कनेक्ट हो गया मतलब आप सारी सर्विसेज भी यूज कर रहे हैं। डेटा नेटवर्क से कनेक्टेड है मतलब आपका स्पेशली डेटा का एक्सेस भी, मतलब ISDN डेटा नेटवर्क में मिला के आप समझ लो कि you have access to voice calling also, data services also, additional services also, लैंडलाइन सर्विसेज ऑल्सो, तो हर चीज आपको पब्लिक नेटवर्क से मिल रही है, ओके। सो दिस इज द आर्किटेक्चर फॉर GSM। नाउ हाउ सिंपल इट इज, ओके। बहुत सिंपल है, एक बार सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना, घर पे बैठे बैठे होने के बाद में एक बार डायग्राम ड्रॉ करना, अच्छा देख के ड्रॉ कर लेना, बट एक बार ड्रॉ कर लेंगे देन यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस डायग्राम, ठीक है। देखने के लिए खाली बड़ा है, खाली आधे पेज का डायग्राम है, ओके ओके। नाउ अब जिसके हम लोग बात कर रहे थे, यू नो द फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड एज आपका मोबाइल स्टेशन, बिकॉज द मोबाइल इक्विपमेंट इज बीइंग कैरिड आउट बाय द मोबाइल यूजर, ओके। एक बंदा है जो कि मोबाइल लेके घूम रहा है, अब वो पैदल चल रहा है या कार में चल रहा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट चल रहा है या यहाँ वहाँ मूव हो रहा है, ठीक है।
So the whole component, the whole area can be called it as a mobile station. ठीक है, उसको हम लोग simply mobile station बोल सकते हैं. Then we have basic station subsystem. It means the combination of, or we can, if we collect BTS and BSC, तो दोनों के कॉलम्स, दो कॉलम्स को मिला के जो सिस्टम बनाया, सब सिस्टम बनाया, दैट इज बेसिक स्टेशन सब सिस्टम. ओके, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन व्हाट वी हैव सीन इन द स्टार्टिंग, जो कि हम लोग ने यहाँ पर देखा है कि भाई आपका जो जीएसएम होता है वो आरएसएस प्लस एनएसएस प्लस ओएसएस होता है. तो ये तो है ही है, साथ में इसके साथ साथ में हम लोगों ने ये भी डिफाइन किया. तो बेसिक नाम दिया इन लोगों ने, हमारा काम है पढ़ना है तो पढ़ो, रखो उसको, एक दो लाइन उसके बारे में लिख देंगे तो कोई इशू नहीं हो रहा है. ठीक है, we have a set of BTS and BSCs which are connected in a hierarchical form called as basic station subsystem. इतनी लाइन आप लिखोगे, एक डेढ़ लाइन में आ जाएंगी, तो आपका कंटेंट उतना ही बढ़ जाता है. ठीक है, then you have last one, that is network switching subsystem. Network switching subsystem, जो वहाँ subsystem की बात की हम लोगों ने, that was network subsystem only, and this is network switching subsystem. Why this is called as network switching subsystem? Because in this particular subsystem we are having multiple network, like we have a PSTN network, we have ISDN network, we have data network. Okay, so the call or the communication may go into any of the network or any of the network, matlab it can switch to any of the network, so that's why it is called as network switching subsystem. Okay, तो ये आपका है, और बाकी सारे टर्म्स मैंने नीचे मेंशन किया. ठीक है, तो यहाँ तक आपका था आर्किटेक्चर. अभी तो आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर को एक बार वापस से, on the left hand side you will find bar equipment is there, then on the then the second column comes with the BTS, that is base transceiver station. Then the third column carrying the BSC, that is base station controller. Then we have MSC, which is the boss, okay, which is the boss for that particular area, and the boss is carrying HLR, VLR, EIR, AUC and all that, OMC. okay. Okay, coming to the next one. I hope इतना भी आप लोग को समझा होगा. ठीक है, बहुत सिंपल है, खाली आपको बस डायग्राम समझने की देरी है. ठीक है, coming to the first one, that is radio subsystem. Okay, we had a communication about this, that the GSM system consists of three subsystems. One is the radio subsystem, then network and switching subsystem, and the third is operation subsystem. तो नेटवर्क सब स्विचिंग के अंदर क्या आएगा वो भी देख लेंगे, ओएसएस वाला भी देखते हैं. पहले स्टार्ट करते हैं आरएसएस से, दैट इज रेडियो सबसिस्टम. अच्छा, वन मोर थिंग आई जस्ट लेफ्ट इट, दैट वी आर हैविंग इंटरफेसेस आल्सो. लेट मी शो यू द इंटरफेसेस. हम लोग ने जो बात किए थे, बस लेट मी शो यू द सिलेबस. ओके, सी, जीएसएम मोबाइल सर्विसेज हुआ, सिस्टम आर्किटेक्चर हुआ, रेडियो इंटरफेसेस. ठीक है, तो रेडियो इंटरफेसेस किसकी है, जीएसएम के अंदर, जीएसएम आर्किटेक्चर के अंदर उसकी जो रेडियो इंटरफेस है उसके बारे में. ठीक है, shift F5. okay, so you will find some kind of interfaces over here. okay, so these are nothing but the interface. अच्छा, interfaces क्या है, some kind of radio connection, or we can say some kind of connection between two modules. okay, if there is a connection between the two modules, then we can say कि there is a interface between. interface क्या होता है बेसिकली, जो कि दो चीज़ों को कनेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल हमारा फैन है, ओके, या फिर हमारे पास में कोई मोबाइल फ़ोन है. ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन को अगर मैं यूज़ करूँगा, सो आई एम द ह्यूमन विच इज, आई एम द यूज़र हु इज़ गोइंग टू यूज़ मोबाइल फ़ोन एंड दिस इज़ माई डिवाइस. ओके, दोनों के बीच में इंटरफेस क्या है, इंटरफेस का टच स्क्रीन है. ठीक है, उसका जो पैनल है वो उसका मतलब उसका जो टच स्क्रीन है, दैट इज द इंटरफेस. So from which I am going to interact with this particular device. okay, if I just want to call someone, then I need to I need to click on the calling button, and then I will take out the number, then I will call someone, and then I will talk. okay, so what I'm using, I'm making use of that panel. I'm making use of that panel, that touch screen, that screen or the display, in order to interact with this particular device. okay, अच्छा, मैं अपने हाथ के ऊपर ऐसे लिख लूँ 9867004004 कॉल, तो कॉल हो जाएगा? नो, बिकॉज दिस इज द जस्ट माई हैंड. ओके, एंड वी आर टॉकिंग दैट आपके डिवाइस से कॉल होने वाला है, तो ये आपका डिवाइस हो गया, ये मैं ह्यूमन हो गया, एंड देयर इज अ इंटरफेस. ओके, तो इंटरफेस क्या ऐसी होती है जो दो चीज़ों के बीच में कनेक्टिविटी का काम करती है. इन शॉर्ट हमारे देसी स्टाइल में वी कैन अंडरस्टैंड दिस वे कि दो डिवाइसेस या दो लोगों के बीच में, इन बिटवीन ऑफ द टू एंटिटीज, interface works as a
it works as a, we can say, some kind of connectivity. Okay, some kind of connectivity is formed between the two entities, so it is called as interface. Okay, so we are having this mobile equipment, हमारा मोबाइल यूजर है और हमारा BTS है, तो दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, अच्छा मुझे आप लोग बताएंगे अभी, someone anyone can tell me the answer, what kind of transmission media will be there between the mobile equipment and BTS? BTS के बीच में और मोबाइल इक्विपमेंट के बीच में कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया रहेगा, गाइडेड और अनगाइडेड? Unguided, sir. Unguided media. Why so unguided media? Because we cannot connect a wire with our BTS to our mobile system. ठीक है, ये तो बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर तो देखो, इसी के लिए जो यहाँ पर जो सिंबल दिखाया है, जो एरो मार्क बताया है, वो आपको एरो मार्क ऐसे बताया है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि इट मस्ट बी अ वायरलेस कम्युनिकेशन, इट मस्ट बी अ वायरलेस इंटरफेस, and this interface is called as interface. Okay, this interface is nothing but the mobile user interface. This interface is called as mobile user interface. Okay, because here the mobile user is connected. Okay, मतलब मोबाइल यूजर मतलब क्या हुआ, ऐसा यूजर जो कि मोबाइल पे है। ठीक है, ऐसा यूजर जो कि एक जगह स्टेशनरी नहीं है बल्कि मोबाइल है, मतलब जगह से मूव कर रहा है। ठीक है, एंड आई एम कैरिंग माई मोबाइल फोन, ओके, and I'm calling someone, ठीक है, I'm talking and I'm communicating with someone and I'm moving, ठीक है, on the road, okay, तो मैं चलते चलते यहाँ से खारघर से मैं आगे बहुत दूर चला गया। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं यूजर हूँ एंड मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैं मोबाइल यूजर कहलाऊंगा। ठीक है, सो दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स, पहले स्टार्टिंग में मैं क्लियर कर रहा हूँ सो दैट आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो whenever you will find this kind of symbol, whenever you find this kind of arrow mark, it means that there is a interface which is wireless interface. Okay, because हम लोग अपने BTS को, एंटीना को किसी के टेरिस पे जगा के वायर लगा के, वायर नीचे लगा के अपने मोबाइल में तो कनेक्ट नहीं कर सकते, हमको तो उसके लिए वायरलेस ही होना पड़ेगा। तो वी नीड सम काइंड ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन। ठीक है, सो दैट रेडियो ट्रांसमिशन कैन बी कॉल्ड एज अ इंटरफेस, मतलब एक मतलब रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू हम लोग करेंगे बात। ठीक है, मैं यहाँ से कॉल करूंगा तो ये रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू एंटीना तक जाएगा। ठीक है, और एंटीना आगे भेजेगा, एंटीना के पास रिस्पॉन्स आएगा, टावर के पास में रिस्पॉन्स आएगा, दैट रिस्पॉन्स विल बी received by the antenna first and then antenna will send that response to me. Okay, so we both are communicating with the radio interfaces. Okay, so that interface is called as interface, also called as mobile user interface. Okay, so this is the first interface which is there between mobile equipment and BTS. Okay, simply लोग ऐसा भी बोलते हैं कि the interface which is there between or which connects the BTS and mobile equipment is called as mobile user interface or interface. ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं। ओके, देयर इज वन मोर इंटरफेस, टाइम हो गया हम लोग का, बट दो इंटरफेस है छोटी छोटी। सो देयर इज एन एबिस इंटरफेस, एबिस लास्ट ईयर था, गया पास आउट हो गया। सो ABIS, ए स्मॉल, ए कैपिटल में, BIS स्मॉल में लिखते हैं। सो देयर इज एन एबिस इंटरफेस व्हिच इज देयर बिटवीन द BTS एंड BSC। तो ऐसा इंटरफेस जो कि BSC और BTS को कनेक्ट करे, उस इंटरफेस को एबिस इंटरफेस बोलेंगे। Done. Okay, now you can see over here this BTS and this BSC are connected with a wired link also. ठीक है, so not necessary, it may be connected with the wired or may be connected with the wireless. ठीक है, तो या तो wired और या तो wireless दोनों लिंक हो सकती है। ओके, इसके लिए देखो यहाँ पर कंपल्सरीली यहाँ पर वायरलेस ट्रांसमिशन बताया है, यहाँ पर उसको हम लोग ने वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर चाहे तो इसको वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, so this is the ABIS interface over here, and we have one more interface, that is A interface. A interface is the one from which the MSC and all the BSCs are connected, that is A interface. Okay, so बस इतना ही है interfaces के बारे में। These are the major and the main interfaces which are there in the GSM architecture, okay, so these are the main interfaces. Okay, कमिंग, छोटा सा एक रिवीजन लेते हैं, एक सेकंड, एक मिनट का, कि वी हैव स्टार्टेड विद द GSM, दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। द आर्किटेक्चर, इट इज इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब सिस्टम, RNO। ठीक है, RNO, रेडियो, नेटवर्क एंड ऑपरेशन। ठीक है, सो इसके 3 सब सिस्टम हैं। देन वी हैव सीन द आर्किटेक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम द मोबाइल इक्विपमेंट, then BTS, then BSC,
HLR, VLR, EIR, AUC, OMC, all 5 databases and modules are connected to the MSc in order to support, in order to help the MSc in order to do or in order to perform their tasks. Okay. Then the public networks are also connected like PSTN, ISDN, and data network. We have three different interfaces, three major interfaces in the GSM architecture. One is mobile user interface, ABS interface, and A interface, which are connected respectively. So यहाँ तक हम लोग अब स्टॉप करते हैं बिकॉज टाइम 50 हो गए, 5 मिनट आप लोग के मैंने ज़्यादा ले लिया हूँ. I'm stopping the recording. Shahrukh Merchant.